So welcome you all once again to our YouTube channel Angrezi Pav. Manish and Abhishek welcomes you once again to this very YouTube channel Angrezi Master. And today we begin with our very first content on our YouTube channel, that is chapter number 1. And the title of the very first video would be noun. The very first part of speech of an English grammar is the noun. Going ahead with the video, and as I promised earlier that we'll be coming up with 5 new words daily, which will help build up your vocabulary and you will have more words in a bucket so that when you speak or write English, you never fall short of words. So the words that we will learn today are able, always, avid, ample, astray. And not only I will just come up with new words, I will be decoding them and I will be telling you the meaning of those words, and simultaneously I will be helping you to use those words in your sentences, how those words are used in sentences, and how you further use it in your daily English speaking and writing. So the very first word is able. Able means having the power and skill to do something or to achieve something, right? So the sentence usage goes like this: He was able to read Greek at the age of 8. Second sentence is always. Always means हमेशा. हिंदी में अगर हम कहेंगे तो हमेशा at all times, all occasions. The sun always rises in the east. इस प्रकार से हम इसका एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, और आप भी ऑलवेज को अन्य सेंटेंसेस में और अलग अलग सेंटेंस में विभिन्न तरीके से यूज कर सकते हैं. तो ये एक सैंपल है, ये एक एग्जांपल है. इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वी हैव द वर्ड एविड. एविड मीन्स हैविंग और शोइंग अ कीन इंटरेस्ट, मीन्स आप किसी की और ज्यादा रुचि, इंटरेस्ट रखना, इज eagerness. एन एविड रीडर ऑफ साइंस फिक्शन, हम ऐसा एक सेंटेंस बना सकते हैं that he is an avid reader of science fiction, he is an avid traveler, he likes traveling, like that. Okay, going ahead with the next word is ample. Ample means अनेक, अधिक, जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा, enough or more than enough, plentiful. There is there is ample time for discussion. जो लास्ट और हमारा आखिरी वर्ड है आज के लिए, जो कि हम लाए आपके लिए, जो है एस्ट्रे. एस्ट्रे मतलब अपने रास्ते से भटक जाना. वे फ्रॉम द करेक्ट पाथ और डायरेक्शन. वी वेंट एस्ट्रे बट अ मैन रीडायरेक्टेड अस. आज के शब्दकोश या वोकेबलरी आज यहीं पे हम एंड करेंगे. आगे बढ़ते हैं हमारे idioms की तरफ. We also promised in the very first video that we will come up with 2 idioms and the meaning. So idioms and vocabulary simultaneously will add up very much and crucial things to learning writing and English speaking skills, right? So the idioms for the day are stir up a hornet's nest. So it's a very rhythmic or a very standard way of saying something, but it is not used usually. So whenever you are in a formal talk or when you are just writing something, you can use idioms, right? So stir up a hornet's nest. It means that we are welcoming trouble, we are provoking trouble, we are inciting trouble. Okay. So the second idiom for the day is that tag against the wall. Be in a difficult situation from where escape is difficult. Okay. Means you have been trapped in a difficult situation or a very dangerous situation where it seems that you will no longer be able to come back from that situation. So for idioms, we have these 2 idioms for the day. So moving ahead with the very first part of speech, that is the noun. So what is a noun? A noun is simply a name of a person, place, animal, thing,
and emotions you feel. So एवरीथिंग यू फील जो हम देख सकते हैं महसूस करते हैं उसका नाम है। किसी व्यक्ति जगह का नाम को हम नाउन कहते हैं, हिंदी में से हम संज्ञा कहते हैं। तो नाउन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर। हम इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे हम समझेंगे कि नाउन क्या है। जैसे अगर हम पीपल कहते हैं, पीपल लोग, सोल्जर, एलन, कजिन, लॉयर, तो ये सारे नाउन्स हैं। एनिमल्स, रेड शार्क, प्लेसेस हो गए, हाउस, लंदन, दिल्ली, मुंबई, ये सब नाउन है। थिंग्स का बात करेंगे अगर चेयर, टेबल, नाइट कुजिन, कुछ भी ले लेंगे, जो जो भी हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं वो भी नाउन होते हैं। आइडियाज जो हम टच नहीं कर पाते, जो इनटेंजिबल चीज़ होते हैं, जो महसूस कर पाते हैं, वो भी नाउन है। तो आप लोग को नाउन समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। नाउन क्या है? इट्स सिंपली वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। गॉट इट? अभी भी आपको दुविधा है तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं और हम साथ ही साथ हमारे कॉन्वर्सेशन सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये एक पिक्चर से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि कुछ चीज़ें हैं। एंड देयर सम नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड यू कैन से सम थिंग्स, दीज आर ऑल नाउन्स, राइट? तो अभी तो नाउन्स हम समझ गए, लेकिन नाउन्स के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन, देयर आर सर्टेन क्लासिफिकेशन इनसाइड ऑफ नाउन, राइट? There's five types of nouns that we'll today look in this video, right? The five types of noun are proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, countable and uncountable noun. अभी हमने ये सारे नाउन तो पढ़ दिए, लेकिन नाम पढ़ने से तो नहीं होगा। हम इन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन को प्रॉपर्ली समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। उससे पहले है हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर मतलब एक पर्टिकुलर चीज की तरफ हम पॉइंट करते हैं, तो पॉइंटिंग समथिंग वेरी पर्टिकुलर टू अ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग, सो दैट इज प्रॉपर। मान लीजिए अभिषेक इज अ गुड बॉय, दैट बॉय इज वेरी गुड। अभिषेक यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है, तो मैं किसी के एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पॉइंट कर रहा हूँ अभिषेक, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन दैट बॉय इज वेरी गुड, वही वही का एक समूह है, तो उसमें एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं है। दैट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। समझ में आया होगा आशा करता हूँ। तो मैं एक डेफिनेशन एक बार पढ़ लेता हूँ, क्या है इसका प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द गिवन नेम टू पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज इट्स ओन नेम। उसके खुद को नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मुंबई एक जगह है तो मुंबई एक ही है, दूसरी मुंबई नहीं है। मुंबई एक पर्टिकुलर चीज है, तो मुंबई इज प्रॉपर नाउन। इसी तरह माइकल, न्यूयॉर्क, ओवर। हमेशा प्रॉपर नाउन इट शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ये हमेशा आप एग्जाम्स में ध्यान रखिए, कहीं भी आप लिख रहे हो तो वहाँ पे भी ध्यान रखिए। अगर कुछ हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, कोई जगह का नाम रख रहे हैं, चाहे वो बीच में आए या आगे है, तो हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज द कॉमन नाउन। जैसा मैंने फर्स्ट प्रॉपर नाउन में एक एग्जांपल दी थी, दैट बॉय इज गुड। वो इज a cluster of many people coming in, means Abhishek, Manish, आप सुदर्शना ऐसा शेयर करोगे तो ये क्या है? एक ये पीपल है, तो पीपल इज ए कॉमन नाउन। किसी भी क्लस्टर जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वो क्या है? कॉमन नाउन रहता है, कॉमन कॉमन नाउन। ठीक है? जैसे दैट बॉय, गर्ल, बॉयज, गर्ल्स, करेक्ट? सिटी, सिटीज के इट्स कॉमन नाउन, राइट? समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। क्योंकि कॉमन है मतलब जो आइडेंटिफाइबल नहीं है। करेक्ट? सिटी, बहुत सारी सिटीज हैं, लेकिन पर्टिकुलर सिटी बोलेंगे तो पुणे एक सिटी है। वैसे बोलेंगे तो हम समझेंगे कि वो प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम सिटी सिर्फ बोलते हैं तो हम नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या है, कॉमन नाउन है कि नहीं, प्रॉपर नाउन है कि नहीं। कॉमन नाउन क्या है? सिटी, डिस्ट्रिक्ट्स, कंट्रीज, राइट? कंट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ कलेक्टिव नाउन।
तो जब हम मीन्स we try to gather or bring in a community of something, a community of people, a cluster of species, congregation of people, तो वहाँ पे क्या होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे फ्लीट ऑफ शिप, टीम ऑफ क्रिकेट, टीम ऑफ फुटबॉल, a deck of cards, a choir of music singers, right? इस तरह के जो नाउन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, जो हम फील नहीं करते, मीन्स इंटेंजिबल थिंग्स। जो हम टेंजिबल टेंजिबल थिंग्स कहते हैं, जो हम कुछ टच कर पाते हैं, ठीक है, चेयर हो गया, बैट हो गया, वो टेंजिबल है। फिर इंटेंजिबल जैसे हमारे इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, whenever we win a match against our opponent, so we feel joy, but we can just feel it. Joy is intangible, right? So joy is an abstract noun. Determination, confidence, and happiness, victory, being victorious. All these things are emotions. We can only just feel it. जो भी चीज हम फील कर पाएंगे, that is an abstract noun, correct? And countable and uncountable noun. Word से समझ में आता है क्या ये, किस, what kind of noun is it, right? A countable noun is a noun with both a singular and a plural form, right? तो dog, a single dog, one dog मतलब काउंट कर सकते हैं, one dog, five dogs काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे certain, several, fleet, ठीक है। नॉन काउंटेबल नाउन इज नॉन, द नाउन विदाउट अ प्लूरल फॉर्म, इसके प्लूरल फॉर्म नहीं लगती, जिसके वर्ड्स का एस नहीं लगते, वो क्या है, अनकाउंटेबल है, करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि हमारा फर्स्ट वीडियो है जो कि नाउन के ऊपर है, आपको समझ में आया। तो अच्छा, ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी भाव, शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो कि इंग्लिश एस्पिरेंट है, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से। कमेंट कीजिए, जो भी क्वेरीज है या आपको पसंद आए हम सजेशन दे सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जब भी हम कोई नई वीडियो लाएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप इस वीडियो से आपकी इंग्लिश सुधार सकते हो। तो thank you once again, all my subscribers and viewers. Take care and goodbye.